انواد ربانیہ کے زبردست عالم دین شیخ کامل حضرت علامہ الحاج سیاح ایشیا حضور مفتی سید نصر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بنا دے یا الہی مجھ کو دیوانہ محمد کا، بنا دے یا الہی مجھ کو دیوانہ محمد کا، رہے میری زباں پر ذکر مستانہ محمد کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مطلع میں نے مقطع پڑھنے کے لیے پڑھا ہے۔ مقطع میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، طریقت بے شریعت وادی پرخار ہے مظہر، طریقت بے شریعت وادی پرخار ہے مظہر، میں وحدت کیو لیکن وہ پیمانہ محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں وحدت کیو لیکن وہ پیمانہ محمد کا۔ سلسلہ عالیہ قادریہ ربانیہ کی امتیازی شان ہے کہ شریعت کی سیڑھی پر قدم رکھ کر طریقت اور معرفت کی منزل سر کی جاتی ہے۔ بغیر شریعت کے طریقت تک پہنچنا جہالت و گمراہی ہے۔ زبردست اولیاء کرام جنہوں نے ریاضت کی، مجاہدے کیے، چلے کیے، اور ان کو یہ مقام حاصل ہوا کہ انہوں نے جب چاہا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ اپنے دلوں میں دیکھ لیا، ان بزرگوں سے بھی پوچھا گیا کہ حضرت بتائیے کہ یہ سارے عملیات اور ساری چیزیں یہ ہم کیسے کریں، وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا سب سے پہلے شریعت پر مکمل عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اگر صحیح معنوں میں شریعت پر مکمل عمل تمہارا ہو گیا تو اپنے آپ طریقت کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے، معرفت کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے، اور حقیقت کی منزل آدمی کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ شریعت سے ہوتا ہوا پہنچتا ہے۔ بغیر شریعت کے کوئی یہ سوچے کہ ہم کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے، شریعت مولوی عالم لوگ جانے، ایسا نہیں ہے۔ یہ غلط خیال ہے، یہ غلط تصور ہے۔ شریعت کی سیڑھی پر قدم رکھے بغیر طریقت اور معرفت آپ کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، خاص طور پر مولا علی کو تعلیم دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مولا علی وہ ذات گرامی ہے کہ جن کے بغیر طریقت کا، معرفت کا اور حقیقت کا، مسئلے کا، مین کا حل بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کے متعلق خود قرآن ہی بتاتا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ایک تنکا بھی، ایک خشک و تر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ ظاہر بات ہے اس میں علم غیب بھی ہے، علم شہادت بھی ہے، علم حاضر بھی ہے، علم غائب بھی ہے، ہر طرح کے علم طریقت بھی ہے، علم شریعت بھی ہے، علم حقیقت بھی ہے، علم معرفت بھی ہے، سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ڈاکٹر ہر ایک کی جسمانی طبیعت کو دیکھ کر الگ الگ دوا کا نسخہ اس کو دیا کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک نسخہ کسی کا ہو گیا تو ساری دنیا کے لیے وہ نسخہ ہو گیا، نہیں۔ طبیب کی ذمہ داری ہے کہ پہلے نبض دیکھ کر آدمی کا مزاج پہچانتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو نسخہ دیا کرتا ہے۔ اگر وہی نسخہ کوئی دوسرا استعمال کرے تو بجائے فائدے کے نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے وہ علم بھی پلایا ہے۔ یہ طریقت کا علم جو ہے یہ پلایا جاتا ہے، سینہ بسینہ ملتا ہے، اور شریعت کا علم قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔
फरमाते हैं हजरत अबू हुरैरा कि अगर वो इल्म जो सरकार ने मुझे पिलाया है अगर मैं उसको जाहिर कर दूं तो लोग मेरी तलवार से गर्दनें उड़ाएंगे। इसीलिए जो जिस मकाम पर अल्लाह का वली होता है उस मकाम से जो वो कहता है हर एक को कहने की इजाजत है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदुल ताइफा है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या शान है उनकी, सुभान अल्लाह। औलियाए किराम उनके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहरे वहदत में ऐसे मुस्तगरक हो गए थे, ऐसे मुस्तगरक हो गए थे कि कभी कभी उनका मुकाम बदल जाया करता था। कैसा मुकाम बदल जाया करता था कि आप होते जमीन पर मगर आपका दिमाग और आपकी कैफियत अर्श पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हाल रहता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जन्नतुल बकी के लिए निकले और उसके बाद वहां से अपने घर में तशरीफ ले आए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं, उसके पीछे गई। सरकार पहले से आ गए और उम्मुल मोमिनीन बाद में आई। उम्मुल मोमिनीन दरवाजे में आवाज दे रही है, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। सरकार पूछ रहे हैं कौन? अल्लाह अल्लाह। जवाब दे रही है या रसूलल्लाह मैं हूँ। कहा कौन मैं? अल्लाह। कहा मैं आयशा हूँ। कहा कौन आयशा? अल्लाह। कहा कौन आयशा? कहा या रसूलल्लाह आपकी बीवी आयशा। कौन आप? अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी। कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह? अल्लाह। अरे अबू बकर की बेटी। अल्लाह। कौन अबू बकर? अल्लाह अकबर। वो अबू बकर यार यार कोई मजाक। सुभान अल्लाह। हर जगह सरकार के साथ रहने वाले उनकी बेटी सरकार की महबूब बीवी और खुद फरामोशी का यह आलम कि खुद सरकार अपने कौन मोहम्मद पूछ रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा बड़ी परेशान हो गई और आपने थोड़ी देर इंतजार किया। उसके बाद सरकार ने खुद दरवाजा खोला। आप आए अंदर। क्या रसूलल्लाह मेरे आका क्या मामला है? आपने मुझे भी पहचानने से इनकार कर दिया, मेरे बाप को पहचानने से इनकार कर दिया, आप तो क्या कहते हैं खुद अपने आप को पहचानने से इनकार कर दिया। तो जानते हो सरकार ने क्या जवाब दिया? ली मअल्लाहि वक्तुन ला यसउनी फीहि मलकुम मुकर्रब वला नबियुम मुरसल। अल्लाह के साथ मेरा एक खास टाइम है, एक खास वक्त है। जिस वक्त मैं अल्लाह से मशगूल हो जाता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला में शामिल हो जाता हूँ, मशगूल हो जाता हूँ, तो मुझे उस वक्त पे न कोई उस मकाम पर ला यसउनी फीहि मलकुम मुकर्रब वला नबियुम मुरसल, किसी नबी मुरसल की भी इजाजत नहीं है कि वो मुझसे गुफ्तगू कर सके या कोई फरिश्ता भी मुझ तक रसाई हासिल नहीं कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये मेरे खुदा के दरमियान का मामला है। सुभान अल्लाह। मन तुम शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू जान शुदी ताकस न गोयत बादसी मन दी गरम तू। बुजुर्गों दोस्तों, यही हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला ने जब इस मुकाम पर आया करते। अच्छा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कौन है ये? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जिनके हम में रोते रोते हजरत यूसुफ की आंखें की बीनाई चली गई। हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया था। उसी शहर के उसी गांव के कुएं में भाइयों ने आके कह दिया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यकीन कर दिया, मजबूर थे, लाचार, मतलब अपने भाइयों की शरारत की वजह से। हालांकि एक अल्लाह का नबी कभी मजबूर लाचार नहीं होता, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो सब बंदे उसके जो है अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़ासा करते हैं। तो बुजुर्ग और दोस्तों, उसके बाद बरसों गुजर गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बन गए। भाई गल्ला लेने के लिए वहां पहुंचने के बाद लौटते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दोबारा मिलने के लिए जाते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कुर्ता, अपना जुब्बा, अपनी कमीज भेज देते हैं अपने भाइयों के साथ।
तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहाँ कनान, कहाँ मिस्र। जैसे ही उन्होंने कमीज रवाना की अपनी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, लोगों से, घर वालों से बताते हैं, आज मुझे यूसुफ की कमीज की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज मुझे यूसुफ की कमीज की खुशबू आ रही है। हजरत शेख सादी ने गुलिस्तान में लिखा है कि कसे पुरसीद रज़ा गुमकर का फर्जन, यहाँ से वाकया शुरू होता है। किसी ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से पूछा, आप ही के गांव के कुएं में यूसुफ पड़े रहे, उस वक्त आपको पता न चल पाया, और सैकड़ों मील दूर से यूसुफ के पैराहन की आपको खुशबू आ गई, ये क्या मामला है, ये क्या मामला है? तो आपने फरमाया, गहे पर तारों में आला नशीनम, गहे पर पुश्ते पाए। कभी मैं ऐसे मकाम पर आ जाता हूँ कि तारों में आला पर मेरी मसरत होती है, और कभी ये आलम हो जाता है मेरा कि मेरे पैर के नीचे क्या चीज है मुझे पता नहीं है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये मकाम मारिफत है, ये हकीकतों की मंजिलें हैं, और ये तरीक़त का एक रास्ता है। बुजुर्गों और दोस्तों, यही हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आम मजलिस में रहते थे तो अपने शरीयत के इल्म की बातें किया करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता था कि उनको तारों में आला की मसनद अल्लाह ताला अता फरमाता था, फिर उस वक्त सिवाय अल्लाह के जलवे के कुछ नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह, सिवाय अल्लाह के जलवे के कुछ नजर नहीं आता था। यहाँ देखो तो हक, वहाँ देखो तो हक, ऊपर देखो तो नीचे देखो तो हक, हर तरफ हकीकत का जलवा नजर आया करता था। इन्हीं के शागिर्द हजरत मंसूर अल्लाह। तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा मजलिस में अपने बैठकर उस मंजिल पर पहुंच गए, और मंजिल पर पहुंचने के बाद आप फरमाते हैं, पानी मैं बरसाता, हवा मैं चलाता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रिज़्क़ मैं देता हूँ। हाँ, ये सब शरीयत के खिलाफ। क्या है? शरीयत ये सब शरीयत के खिलाफ। हकीकत में तो रिज़्क़ देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, हकीकत में तो हवा चलाने वाला अल्लाह ताला है, हकीकत में तो सारी चीजों को पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला। आप फरमा, अब सारे मुरीदीन बिल्कुल खामोश अदब के साथ बैठे हुए। जब हजरत जुनैद बगदादी को होश आया, अपनी ज़ाहिरी मंजिल पे आए, तो एक मुरीद ने, आलिम दीन थे, जानते थे कि मेरा पीर और मुर्शिद शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करता, एक कदम भी उसका शरीयत के खिलाफ नहीं उठता। उन्होंने बहुत अदब के साथ माफी चाहते हुए, हजरत आज आपने ऐसा तो क्या फरमाते हैं हजरत जुनैद बगदादी, अगर आज के बाद कभी भी ऐसे जुमले मेरे मुंह से सुनना तो मैं इजाजत नहीं, हुक्म देता हूँ कि तलवार निकाल कर मेरे दो टुकड़े कर दो, क्योंकि शरीयत के खिलाफ सजा यही है, शरीयत के खिलाफ करने वाले की सजा यही है, यही है। अल्लाह। चंद दिन गुजरे, उसके बाद फिर आप उसी मंजिल पर पहुंचे, और आपने जो ये जुमले इरशाद फरमाना शुरू किए, हवा मेरे हुक्म से चलती है, पानी मेरे हुक्म से बरसता है। बस उन्होंने तलवार निकाली, और तलवार निकाल के हजरत को दो टुकड़े करने के इरादे से तलवार चला दी। अब तलवार चलाई, ये हाथ है, तलवार चलाई, तलवार आर पार हो गई। सुभान वैसे ही बैठे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इधर से तलवार चलाई, इधर से तलवार चलाई, इधर से तलवार चलाई। अरे नूर कहीं कटता है, नूर कहीं कटता है, बशरियत बशरियत तो कटती है, मगर नूर कभी नहीं कटता। अब आप ये सोचेंगे यही वो मकाम है, मंजिल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया जाए। आदमी का सीना चाक किया जाए, खून निकलता है, दिल निकाला जा रहा है, आदमी का दिल निकाल लीजिए, क्या इंसान बचेगा? जब दिल की धड़कनें खत्म हो गई, दिल का जिस्म से ताल्लुक खत्म हो गया, तो आदमी बच नहीं सकता। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बशरियत नहीं है, ये नूरानियत है। नूर पर तलवार काम नहीं किया करती। हज़रत बगदादी पर 2500 तलवारें चलाई गई, लेकिन आप वैसे के वैसे ही, उसके बाद फिर होश आया, हज़रत आज आपने फिर वैसे ही बयान किया, वैसे ही आपने जुमले इस्तेमाल किए। कहा फिर मैंने हुक्म दिया था, तुमने मेरे तलवार से 2 टुकड़े क्यों नहीं किए? कहा हज़रत हम कसम खा के बता सकते हैं, हमने तलवार से 2 टुकड़े करने की पूरी कोशिश की, मगर आप
इधर से तलवार जाती थी, उधर पहुंच जाती थी, उधर से निकलती थी, इधर पहुंच जाती थी। आप वैसे ही के वैसे ही रहे। तब आपने फरमाया उस वक्त मैं मजबूर था, क्योंकि मैं आलम बशरियत में नहीं था, आलम नूरानियत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हकीकत की मंजिलें हैं बुजुर्गों और दोस्तों। तो जो औलियाए किराम की जुबान से जो चीजें जाहिर होती हैं उसकी नकल मत करो। फला बुजुर्ग ने ऐसा किया लिहाजा हम भी ऐसी करें। मजूब बुजुर्ग की पैरवी हराम है, मना। सालिक बुजुर्ग की, सालिक वली की पैरवी करो। यही हमको गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीम है। तो आज हम और आप हल्का जिक्र कादरिया में बैठे हैं, यही नूरानियत पैदा करने की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र इलाही से दिलों के मैल खत्म हो जाते हैं, दिलों का जंग खत्म हो जाया करता है। जिस तरीके से लोहे को घिसते घिसते, पाक करते करते, पॉलिश करते करते लोहा का ये आलम हो जाता है कि लोहे में आपका चेहरा दिखने लगता है। इसी तरीके से औलियाए किराम ने, बुजुर्गों ने हल्का जिक्र को कायम किया है। जिक्र से गुनाहों का मैल दिल से दूर हो जाता है, दुनिया का जंग दिल से दूर हो जाता है। और जिस तरीके से पॉलिश कर करके, तो जिक्र इलाही करते करते हमारा दिल जो है आईना बन जाएगा। सुभान अल्लाह। इसी तसव्वुर के साथ और उसी अकीदत के साथ अल्लाह ताला के जिक्र में शामिल हो जाइए, मुख्तसर तौर पर जिक्र किया जाए और सब एक आवाज के साथ। और याद रखिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के फिर का तरीका ये है, नफ्स में सारे शैतान घुसे, ला इलाहा ये कह के जितने माबूदाने बातें हैं उनकी नफी की जा रही है। आपके सीने में, आपके नफ्स में जितनी बुराइयां हैं उन सब को आप निकाल के फेंक दीजिए पीछे। ऐसे ला इलाहा गर्दन को पीछे झटका दीजिए, गोया कि हमने सारे बुतों को, सारे माबूदाने बातिल को सबको निकाल के एक झटके में पीछे फेंक। इल्लल्लाह की ज़र्ब आपके दिल में लगना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपका दिल